کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے، بہو کو اس کی نو والی دسانی ہوگی ساس سے جدا کر دوں گا، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے۔ جو کہ باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی بیٹی یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ لکھے چلے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔ آمین۔ یہ آیت بڑی ایک ڈیفرنٹ آتا ہے پوری انجیلوں کے اندر۔ لوکا رسول کی انجیل کے اندر بھی اس کے بارے میں وہاں لکھا ہوا ہے، میں زمین پر آگ لگانے آیا ہوں، کاش وہ لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا۔ یہ بات خداوند یسوع مسیح نے کہی ہے، یہ بات عام شخص کی نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے۔ اب سوال یہ ہے، یہ کہتا ہے نبی کہتا ہے کہ یہ صلح کا کیا ہے؟ کیا ہے؟ نہیں پتا تھا یسوع مسیح کی تم بولو تو صحیح ہے؟ کیا ہے؟ ہاں جی ادھر فیمیل یسوع مسیح کیا ہے؟ صلح کا کیا ہے؟ صلح کا ایسا ہے شہزادہ ہے۔ لیکن بائبل ہمیں سکھاتی ہے ہر یسوع مسیح ہے، تھا، ہے، ہوگا، یہ سب کچھ ویل اینڈ گڈ ہے کہ یسوع مسیح صلح کا ایسا شہزادہ ہے۔ جہاں بھی بات ایسا ہے لڑائی کی ہوتی ہے، یسوع مسیح نے آپ کو یاد ہے کہ جب مقدس پترس رسول نے ایک نوکر کا ایک ایک بندے کے سپاہی کا سر کے اوپر جو کان ہوتا ہے کان اس کو اڑا دیا تھا، تو بائبل میں لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا ہے اے پترس اپنی تلوار میان میں رکھ، اور جو تلوار سے قتل کرتے ہیں وہ تلوار سے قتل کیے۔ لیکن سوال یہ ہے کیا خدا یسوع مسیح نے خود کہا ہے یہ نہ سمجھو، یہ نہ میرے نال بولو، یہ نہ یہ نہ سمجھو کہ اگر ایک ہے میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار، اور کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے، بیٹی کو اس کی ماں، ساس کو اس کی بہو سے جدا کرنے آیا ہوں۔ یہ بڑی ڈیفرنٹ آیت ہے، یہ بڑی عجیب کل آیت ہے جو خدا یسوع سے لگی۔ لیکن جب اس کی بیک گراؤنڈ پڑھتے ہیں، جب اس کو ریالٹی میں دیکھتے ہیں، جب اس کو سچائی میں دیکھتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے۔ آج ہم سمپل جو پڑھ لیتے ہیں شاید ایسا ہے، لیکن بائبل کے اندر جتنی باتیں خدا نے یسوع سے کہی وہ ایسے ریولیشن میں کہی ہے، مکاشفہ میں کہی ہے، چھپی بیتوں میں کہی ہے۔ اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کو ریما سمجھتے، ریما کسی کو پتا کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتا دے، میں بتایا ویسے آپ کو ریما کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتا کسی کو؟ ریما بائبل چلے یہ بھی ٹھیک، ہاں ریما بتاؤ، نہیں پتا آپ کو؟ انجی سر چڑی، ہاں ہاں ادھر آخر ملے، ادھر آخر سر ریما، ریما تھا تازہ مکاشفہ۔ میں نے بتایا آپ کو وہ مکاشفہ جو خدا کے سب بولے اور آپ لوگوں کو بتا دو، اس سے کہتے ہیں فریش انانٹنگ، فریش انانٹنگ، تازہ مسا۔ اچھا تازہ مسا تو انجے تازہ مسا کدی بیاہ بھی ہوا ہے؟ لیکن بائبل کہتی ہے انانٹنگ، فریش انانٹنگ، یعنی تازہ مسا بائبل کے اندر لکھا ہے۔ لیکن ریما کیا ہے؟ ریما وہ جو اکھان آ گیا ہو، خدا کلام کرے، اس سے کہتے ہیں تازہ مکاشفہ۔ اس سے کیا کہتے ہیں؟ مثال دیتا ہوں، نبوت کر رہا وہ کہہ رہا ہے تو وہ کیا؟ وہ ریما ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ لگوس ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے یہ لگوس ہے، لیکن جو تازہ مکاشفہ ہے وہ ہے ریما۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ریما۔ لیکن بائبل کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے یسوع مسیح
बेटी बास दफा अपने कलाम के स्वरूप से, अपने रेमा के स्वरूप से, अपने लगोस के स्वरूप से, अपने मकाशवा के स्वरूप से, रवायतों के स्वरूप से, ख्वाबों के स्वरूप से खुदा आपको मना करेगा आप इस शख्स के साथ नहीं रहना। और बाइबल कहती है, और इसका मतलब यह है कि ना समझो मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूं। ये तलवार वो नहीं है, वो तलवार रियलिटी वाली नहीं, ये तलवार रूह की तलवार की बात हो रही है। ये वो तलवार है और जो खुदा का कलाम है। खुदा कहता है मैं तलवार के स्वरूप से, मैं कलाम के स्वरूप से मैं तुमको वहां से जुदा करूंगा, मैं तुम्हारी सेपरेशन करूंगा, मैं तुमको अलग करूंगा। अगर बाइबल के अंदर ऐसा है, इफिसियों 6 ऐसे है 17 पढ़े, इफिसियों 6 बार उसके ऐसे है 17 आयत। अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। वहां खुदा ने कहा है और ऐसा है वो कलाम जो रूह की तलवार है। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। क्या लिखा है? ऐसा है इफिसियों 6 उसकी कौन सी आयत है? सारा कौन सी आयत है? और वहां लिखा हुआ है, निकाल लिया। लेकिन यार रूह की तलवार की बात है, ये वो तलवार नहीं जिससे खुदा बात नौ जाके अगर आज तो पादी ने साडा काम तो सौखा करता है जिवें मर्जी बोलो। इंज सत्संग उन्होंने आख्या पादी ने सुनाया ना मैसेज, अज तो ही लैदा आ जा लै यार सौदा हुण है असी नहीं हो रहना इन्हां नाल तो भावें बाकी पूरे सारे साल दी ना समझ आई हो है जाके अपने हस्बैंड ਨੂੰ ਲੈ ਯਾ ਸੌਦਾ ਤੇ ਪਾਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕਲਾਮ ਚ ਸੁਣਾਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ कई तक गई वक्त है। लेकिन बाइबल कहती है उनसे, पौलुस रसूल कहते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया को खत लिखते हुए कहते हैं उनमें से निकल कर इलाज रहो और मैं फिर तुम्हारा खुदा हूंगा। आज खुदा ये चाहता है हम पूरे बंदे से निकल कर खुदा अपनी रूह की तलवार ऐसा है चलाता है ताकि हम उसको पूरी समझे अच्छी आदतों को जे वेखने ड्रामे तो बनने जे वेखनिया फिल्मा तो बननिया होना क्यों जो देखेंगे वो ही होगा। लेकिन खुदा कहता है मैं तुझे पूरे बंदे से निकालना चाहता हूं। खुदा ने हज़रत नूह से कहा अब तो कश्ती बना, मैंने रूह की तलवार चलाना स्टार्ट कर दी है। हालेलुया। तो बाइबल के अंदर क्या लिखा है उसका इफिसियों 6 उसके ऐसे है 17 के अंदर लिखा है और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है। जोरदार ताली मारो, जोर ना मारो यार, टिक टिक क्यों कर दो, पता लगे कैमरे तक आवाज होनी चाहिए। अच्छा लिखा है और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले केड़े केड़े बाइबल है कह रहे अच्छो जेड़े पढ़े लिखे जेड़े अपने बाइबल पुत्र इंज करे करो ना बेटियों भाइयों ऐसे करो बाइबल अपने के कर रूह की तलवार मैंने बताया था कोई ऐसा बंदा नहीं है जो शॉपिंग करने के लिए जाए और पैसे साथ लेकर न जाए। कोई ऐसा है फौरन सूट कढ़ाओ तो ओ मेरे तो पैसे चो देखे आखेगा भाई वो तो लेके आने से। कोई बंदा ऐसा नहीं जो शॉपिंग करने के लिए जाए और पैसे भूल जाए, ऐसा है। लेकिन बाइबल क्या कहती है और खुदा का कलाम जो है जो रूह की तलवार है उससे ले लो, उससे क्या करो ये है तलवार। यीशु मसीह ने कहा मैं कलाम की तलवार चलाने आया हूं। आपने जितने कलाम की बातें की, अभी जितने सवाल किए, जितने उनके जवाब जो उनको जो दिए वो सारे कलाम में से दिए। हालेलुया। आपको पता है खुदा यीशु मसीह ने पूछा कि बताइए तू काम किसके इख्तियार से करता। मेरे आका ने कहा फिर मुझे भी इस सवाल का जवाब दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि क्या यूहन्ना रसूल का बपतिस्मा आसमान से था या जमीन से था। सलाह करना भाई आखिर लगी यार अगर असी आखे आसमान तो आखन भी तुम यकीन क्यों नहीं किया। अगर आखेंगे जमीन तो लोगों को डरने उसे नबी जानते। यीशु ने कहा फिर मैं भी तुझे नहीं बताता मैं ये किस इख्तियार से करता हूं। रूह की तलवार चली, ऐसे तनाई चली, हिकमत चली और ऐसे अकल चली, रूह से बात की। लेकिन यीशु ने कहा रूह की तलवार ले लो, ये कलाम रूह की तलवार है। खुदा उससे आपको जुदा करने के लिए आप गुनाहगार के साथ तबाह ना हो जाए, आप बदकार के साथ तबाह ना हो जाए। बेशक खुदा गुनाहगार से प्यार करता है लेकिन हाँ करता है, करता था, करता रहेगा। जब तक गुनाहगार नहीं मुड़ता और
अपने कामों से, फिर वहां रूह की तलवार चलती है। आपको पता है अच्छा हज़रत नूह जो थे वो कश्ती बना रहे थे, बड़े साल मुनादी की, कितने बड़े साल मुनादी की, तो लेकिन जब वो बात नहीं आई तो बाइबल खुदा का कलाम सिखाता है, पर खुदा ने कहा रूह की तलवार ये है तो कश्ती इतने फुट लंबी बना, इतनी फुट चौड़ी बना, इतनी फुट ऊंची बना, तू तो तेरा कराना है बेचो और बाकी सारे ने मैं बेड़ा करे करांगा। आमीन आमीन। छोटा आमीन छोटा है। खुदा के कलाम हमें सिखाता है। यीशु ने कहा मैं अच्छा बस कई बार बोला कि आंदे ने बड़ी अच्छा कदी शिगिर्दां च इंजे लड़ाई हुई वेखी किसी ने बाइबल च पढ़िया है? बाइस हुई आज तक लड़ाई विखाना हाँ हो सकता बल्कि है, लेकिन वो लड़ाई का स्वभाव क्या बना, वो तकरार का स्वभाव क्या बना, वो बाइस का स्वभाव क्या बना। वो साल के तौर पे यहाँ 4 पादरी हैं, यहाँ कितने हैं? 4 पादरी इन टाइम में चर्च में मुनादी नहीं कर सकते वो, बल्कि वो अलग-अलग होंगे। जब अलग-अलग होंगे एक चर्च खुलेगा, यहाँ 4 हैं, अगर वो जाके एक है राजकांग पे खोले, एक ऐसा है कि अहमदपुर में जाके खोले, एक जो है फुटाबास में जाके खोले, तो कितने हो गए? 4 चर्च हो गए ना। श्री ये जो तकरार है ये उनके लिए बाइस से ऐसे है नजात बनी, या बाइस से उनके लिए ऐसे है किसी और का स्वभाव बनी? ये बाइस से नजात बनी, क्योंकि हर इलाके के अंदर जाकर अंजीर की मुनादी हो रही थी। अच्छा पौलुस रसूल तो जो फरमाना, जब पौलुस रसूल ने कहा हम यूहन्ना को साथ लेकर नहीं जाना चाहते, बरनबास ने कहा जनाब हम लेकर जाना चाहते, लेकिन उनके अंदर सख्त बाइबल के अंदर यहाँ ये लफ्ज़ है ना, वह सख्त तकरार हुई। जब तकरार हुई यहाँ सुना मैं सुलह कराने, बोलो तो सही, सुलह कराने तो क्या करने आए? आखो हालेलुया। अमाल की किताब उसका है 15वां, अमाल की किताब उसका 15वां उसकी 26 आयत से मैं पढ़ूंगा। अमाल 15 उसकी 26 में पढ़ूंगा। चंद रोज बाद पौलुस ने बरनबास से कहा जिन जिन शहरों में हमने खुदा का कलाम सुनाया था, और आओ फिर उनमें लिखे चलकर भाइयों को देखे कि कैसे हैं। जतवजो करना, बरनबास की सलाह थी कि यूहन्ना को जो वर्कर्स कहलाता है अपने साथ ले चले, मगर पौलुस ने यह मुनासिब ना जाना, है तो रसूल है तो शगिर्द, कहते इन्नू नहीं नाल खड़ना, इन्नू ते जे को मेरे ढड रंग आंदा लगदा पौलुस रसूल रूल को सब बपतिस्मा हो गया गरूर कर लापे है। समझेंगे ना, ऐसे ही समझेंगे ना। हाँ इनको नियमता बहुत ही आ गई है गरूर, लेकिन था आगे लिखा है कुछ और मामला था, क्योंकि इससे पहले उसने मीटिंग में बुलाया था, वो आंदा नहीं मैं बिजी हूं, उन्होंने कहा तू बिजी है तो फिर बिजी रह। क्या लिखा है? और जैसे लिखा है पंफिलिया में किनारा करके उस काम के लिए उनके साथ ना गया था, उसको हम हमला ले चले, और बस एक बंदा साल बाद चर्च आए, 2 महीने बाद आए, 3 बाद आए, वो आके सारा पुलपट मेरे हवाले कर दो, ऐसा होगा? वो रेगुलर रहेगा, सारा पुलपट उसका होगा। आमीन। आप नहीं माइंड करना किसी ने, लेकिन मैं बाइबल की बात कर रहा हूं, ये पौलुस रसूल की बात। आपने नहीं माइंड करना किसी ने भी पास साढ़े दी फिट कर दे नहीं ए गल बाइबल दी, बाइबल में लिखा है, क्योंकि वो शख्स उसके साथ मीटिंगों में नहीं आया था, अब वो चाहता था कि हम पूरी मीटिंग लीड करें, लेकिन बाइबल में लिखा है पौलुस का नो जो हमारे साथ पंफिलिया में एक इलाका था उसका नाम था, वो हमारे साथ नहीं गया, अब हम इनको लेकर जाना नहीं चाहते। क्या लिखा है उसको? लिखा है बस उनमें ऐसी सख्त तकरार हुई, बस उनमें, इधर देखो, बस उनमें लिखा है सत्य जो फरमाना, बस उनमें ऐसी सख्त तकरार हुई एक दूसरे से जुदा। ए तकरार साडी तकरार नहीं, ए तकरार रूहुल कुद्सी इंजे तकरार है जेदे स्वभाव ना के असी पढ़ांगे तो बरकत दा स्वभाव ठहरांगे। तकरार इंजे अगर तुम तकरार कर जाओ तो पूरा हफ्ता रोजे च रहो। हालेलुया। और ऐसी सब तकरार हुई कि एक दूसरे से लिखा है जुदा हो गए, और बरनबास एक ही हो गए एक दूसरे से, बोले तो सही,
और आगे लिखा है जब ऐसी तकरार हुई एक दूसरे से, लिखा है जुदा हो गए, बरनबास मरकस को लेकर लिखा है जहाज पर, लिखा है को पुरुष को रवाना हुआ, मगर पौलुस ने सिलास को पसंद किया और भाइयों की तरफ से खुदावन के फजल के सबूत होकर रवाना हुए और कलीसिया को मजबूत करता और सूर्य किलिकिया से गुजरा। लेकिन जब दोनों टीमा की तकरार हुई, दोनों टीमा लदा गई, तो काम किसका हुआ? रूह का। काम किसका हुआ? रूहें बचाते गए। हुआ सख्त तकरार, भाई रूह की तलवार चली। देखा मैं क्या करना, मैं तुझे ऐसे जुदा करने के लिए आया। क्या करने के लिए आया? हम नहीं समझते, हम समझते शान उक्का साड़ा जड़ा ना वो काम ही खत्म करना है, लेकिन ऐसा नहीं। और रूह की तलवार, और रूह का कलाम जो होता है, और वो खुदा हमें जो है वो समझाना चाहते हैं। ये ना समझो कि मैं क्या करने आऊं, सुलह कराने आऊं। ठीक है, ये ऐसा है, रसूल है, लेकिन इनके अंदर ऐसी तकरार होगी, लेकिन ये अलग-अलग हुए या ना हुए? अलग-अलग हुए। जब हुए तो जब दोनों टीमें, एक मशरिक को गई मिसाल के तौर पर, एक मगरब को गई, तो वहां लिखा है खुदा के सुपुर्द हुए और दोनों ने जाकर इंजील की मुनादी की। लेकिन इससे पहले बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने कहा मैं जमीन पर सुलह कराने, मैं रूह की तलवार चलाने तुम्हारी लाइफ के अंदर, तुम्हारे बेबीज के अंदर, तुम्हारी मिसेस के ऊपर, तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर, तुम्हारे ऐसे परिवार के ऊपर मैं रूह की तलवार चलाने आया। जब तक रूह की तलवार नहीं चलेगी हम पाकिस्त नहीं होंगे, हम पाक नहीं माने जाएंगे। आमीन। आपको पता है जब पौलुस रसूल पहले उन खुदा के लोगों को मारता था, ये क्या करता था? मारता था ना। तो बाइबल के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात है, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है जब वो मारता था तो दमिश्क के इलाके को जा रहा, जब इलाके को जा रहा तो एक अपने घोड़े पे सवार है, रथ साथ है, बड़ा मजमा है, बड़ा हजूम है, बड़े एक प्रोटोकॉल के साथ जा रहा। जब रास्ते पे पहुंचा, तारीख और बाइबल के अंदर लिखा है, और जब आप पहुंचा तो एक बड़ी लाइट, एक बिग लाइट, एक बहुत बड़ा नूर उनके ऊपर ऐसा चमकता है। और चमकने के बाद पौलुस जो साउल है और वो उसकी आंखें अंधी हो जाती, लेकिन वो उसका घोड़ा जो था, उसका रथ जो था, उस नीचे उतरा, लेकिन आवाज सुनी पर दिखाई कुछ। वहां रूह की तलवार चली। जब रूह की ऐसी तलवार पंजाबी चलना वो लाठी बड़ी बे तो पर जो वजदी है ना तो कट तोड़ देंदी, वाहस होती नहीं आती। जो वज के वापस आते तो फिर महल्ले कानूनिया च मन इलाकों च पता चलता बे एदे ते खुदा दी लाठी, पर जो वजदी है ना तो कट लंब देंदी, धूड़ पा देंदी। लेकिन बाइबल के अंदर क्या लिखा है? बाइबल कहती है जब पौलुस रसूल के ऊपर रूह की तलवार चली, और लिखा है रूह की तलवार ले लो, और मैं सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार, और इसके ऊपर वो तलवार चली जिसके बारे में खुदा ने यीशु मसीह ने कहा। और फिर हनन्याह को कहा कि जा उसका ऐसा है बपतिस्मा दे, उसको तैयार कर, उसको हाथ रख। उससे कहा पहली तो गल भी मैं नहीं जाना, वो बड़े स्टैंडर्ड का बंदा है। खुदा ने कहा नहीं, ये मेरा कौम में से चुना हुआ एक वसीला है। हालेलुया, ताली मारो जोर दी खुदा की जलाल। बाइबल के अंदर बड़ी खूबसूरत बात है, जब ये वही शख्स वहां क्या जा रहा है, वहां उनको मारने के लिए जा रहा है, लेकिन रूह की तलवार रास्ते में चली, और जब इनको ऐसा जुदा रास्ते में कर दिया, मैं सुलह कराने, मैं दमिश्क के इलाकों के साथ सुलह कराने नहीं आया, मैं पौलुस के ऊपर तलवार चलवाने आया। और जब वो तलवार चली, जब वो लगा हुआ, और वही शख्स चलकर कहता यीशु मसीह खुदा है। ताली मारो खुदावंद है, वो बादशाह। और फिर यही शख्स कहता है मेरा मरना भी, कई बार मेरा मरना हो ही, समझ गए, चवेलियां गोलियां खा लिया, वो खाद वालियां खा लिया, वो दाने रखने वाली खा, मैं वो तो बगैर नहीं रह सकता। कभी ऐसा है? मैं तो बगैर, अगली गाली माखनी, मैं तो बगैर नहीं, मैं जी नहीं सकता तो बगैर, क्योंकि मेरी उन्हें कमिटमेंट नहीं। पौलुस रसूल के ऊपर जब रूह की तलवार चली, कहता है मैं अगर जीना है मसीह के साथ, मेरा मरना भी मसीह, मेरा जीना भी मसीह, मेरा उठना भी मसीह, मेरा बैठना भी मसीह, मेरा सब कुछ मसीह है। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। साढ़े ते तलवार पुलिस ही ना चलती, कभी फू करके आनू जाए, कभी फू करके आनू जाए, कभी फू करके आनू जाए। अब पुलिस की तलवार आपके ऊपर जब तक मूव करती रहेगी,
आप उसको होली स्पिरिट की तलवार को अपनी लाइफ के अंदर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैंने कहा था जब आप एक दिन जिस रोज आप मीटिंग में तैयार होके आ गए उस दिन रूह की तलवार आपके साथ साथ रहेगी। एक बंदा आया चर्च, मैंने उसके घर का विजिट किया, मुझे कहा तू चर्च आना, तो अभी बीवी ने लैके आया तो बच्चे ने आ टाइम ना गया टाइम ना गया तान के भला की आंदा है मैं तो पादी साहब ने खुश करना है तो मैं तो वीडियो कॉल ही कर लेता, मैं बाई बाई कर देनी। देखें उसके ऊपर वो रूह की तलवार नहीं थी, वो तो मैंने खुश की तो करना है सारे लोग, मैं तो आप किसी होर ने खुश करना है। वो रब है, हालेलुया, वो खुदा है। मैंने कहा तू ये नहीं कहा, मैं कहा मैं कहते तेरे रुसे आंदा मैं जी तेन खुश करना है। मैं मैंने गली च भी आंदा बाय बाय बाय, तो मैं कहना बाय, मैं खुश हूँ। और भाई बाइबल के अंदर क्या लिखा, पौलुस कहता मेरे ऊपर रूह की तलवार ऐसा चली और अब मैं खुदा को खुश करता। यही बंदा उनकी बात इबादत खालों के अंदर कहता है यीशु मसीह खुदावंद है, हालेलुया। काश तुम्हारे ऊपर रूह की तलवार चले। मैं तुम्हें उनके ख्वाबों से, उनके रोया से, उनके स्कंजे से अलग करने के लिए आया है, हालेलुया। फिर आगे क्या लिखा है, और बहू को उसकी और ना बोल बहू को उसकी और पहना जाके आखिर पा दिया था भी सस ने बोलना ही नहीं। भाई यह गल हो रहे, यह गल है हो रहे, और उसकी सास से जुदा करने। और मैं मतलब आपको और बताता हूँ, कुछ हमारे रिलेटिव समझ गए, कुछ और होते वो जो इतने थे गले में डालते, समझ गए, जुदा करने के लिए आ, मैं उससे अलग करने के लिए आ, ताकि तुम क्या बनो, पाक बन जाओ। और खुदा का कलाम हमें बड़ी खूबसूरत बात सिखाता है। लूका रसूल की इंजील के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है, सब तवज्जो फरमाना। लूका रसूल की इंजील उसका 12वां बाब, काश अपने डायरी लाते तो आप ये ऐसा लिख सकते थे। लूका उसका 12 तो उसके लिखा है 49 में लिखा है, मैं जमीन पर आग लगाने आया हूं, अगर लग चुकी होती मैं क्या ही खुश हूं, हालेलुया। कहता वो मैं आग लगाने आया, वो आग पाक रूह की है, वो आग होली स्पिरिट की है, वो आग मेरे और आपके गुनाहों, पापों, गलतियों, कमियों, कमजोरियों, बदकारियों को, तमाम बुरे कामों को जलाने वाली आग है। वो खुदा का कलाम है, आमीन, जिससे आप राही पा सकते। आगे क्या लिखा है, लेकिन मुझे एक बपतिस्मा लेना है, जब तक वो ना बोले मैं क्या ही तंग रहूंगा। वो कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, हाथ खड़ा करें। पानी का ऊंचा किया करो ना, ऐसे ऐसे। कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं लिया, हाँ ऊंचा करो। जिन लोगों ने नहीं लिया, आपने लिया, नहीं लिया। जिन लोगों ने नहीं लिया वो लो, कहता अगर वो ये ले लेते तो मैं भी खुश होता, आमीन। क्या लिखा, लेकिन मुझे एक बपतिस्मा लेना है, जब तक वो ना होले मैं क्या ही तंग रहूंगा। क्या तुम गमान करते हो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आऊं? मैं तो उनसे कहता हूं नहीं, बल्कि ऐसे है जुदाई कराने, क्योंकि अब से लेकर एक घर के 5 आदमी आपस में मुखालफत रखेंगे, और 2 से 3 या 3 से 2, बाप बेटे से मुखालफत रखेगा और बेटा बाप से, और बेटी माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से, बहू सास से। फिर उसने लोगों से भी कहा जब तक बादल को पश्चिम सूखते देखते हो तो कहते हो कि मींह बरसेगा, हालेलुया। इधरों कहते बदली चढ़ी है, काश सुन लो भाभी का, जो इधरों कोने चो हवा चले कभी बारिश तो बगैर नहीं जाती, इधरों कभी भी बारिश तो बगैर नहीं जाती। आगे क्या लिखा है, गुलाम यूसुफ ने कहा, चल लिखा है, और ऐसा ही होता है ऐ दयाकारो, जमीन और आसमान की सूरत में तो इम्तियाज करना तुम्हें आता है, लेकिन इस जमाना की बाबत इम्तियाज करना क्यों नहीं आता? तुम अपने आप ही क्यों फैसला नहीं कर लेते कि वाजिब क्या है, हालेलुया। कहता तुम सब सूट लेने के लिए जाए ना, वो फटा हुआ में सूट दे दे, फटा हुआ, हम कहते फौरन दुकानदार को कहते तू अल्लाह वास्ते दे दे, तू पैसे नहीं लेने दे। बाइबल क्या कहती है, हम कोई चीज लेने जाए इम्तियाज करते या नहीं करते इम्तियाज, तो खुदा के कलाम में अपने लाइफ के अंदर इम्तियाज क्यों नहीं करते? लिखा वो सुलह कराने नहीं, बल्कि वो इब्लीस से तुमको सहज जुदा करने के लिए आया ताकि तुम बचाई जा सको, आमीन। पौलुस को ऐसे है, ऐसी रूह की तलवार ऐसे है चलाई, उस काफिले से ही जुदा कर दिया। जो काफिला उसके साथ था ना, वो जा रहा था, लेकिन कहता अब मेरी और आपकी बात खत्म,
हालेलुया। मेरी और आपकी बात है, मेरा रास्ता ये है, तुम्हारा रास्ता वो है। और वो उस इलाके के अंदर जाता, जाकर ऐसे हैकल के अंदर जाकर, खुदा के घर के अंदर जाकर इंजील की मुनादी करता। शागिर्द तो पहले ऐसे डर गए, कहते ये बंदा तो हमें मारने के लिए आता। उनको ये बाद में पता चला कि रूह की तलवार इसके ऊपर चल चुकी है। हालेलुया। आपने आपको सेपरेशन करें, आपको सेपरेट करें, आपको लहदा करे, फिर आप खुदा के लोग। अगर आप सेम वही उन लोगों के साथ, चुगलियां करने वाले के साथ, बदकारी करने वाले के साथ, झूठ बोलने वाले के साथ, ऐसा आपका कोई दोस्त है तो उसे कहे बाय बाय। क्या कहे? उससे कहे बस मेरी तेरी खत्म, बस मैं जितना था तेरे साथ नवाज सका, अब मेरा खुदा और मैं हूं। आमीन। क्योंकि खुदा का कलाम सिखाता, हज़रत दाऊद कहते हैं तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और राह के लिए। खुदा के कलाम को अपनी लाइफ के अंदर है। उससे कहीं आपका कोई भी है, बहन है, बहू है, सास है, कोई भी है, आपका रिलेटिव है, फुप्पो है, चाचा है, ताया है, अगर आपको बुरे रास्ते पर लेकर जाता, आप उससे बाय बाय कर दें। आप खुदा के कलाम के जाने भाई, आप खुदा के कलाम को सच बोले, झूठ ना बोले, हक को जाने, फरमाबरदारी में आ जाए, ताबेदारी में आ जाए। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है, ऐसे है यीशु की किताब पहला बाब 8 आयत, शरीयत की ये कलाम तेरे मुंह से आप चर्ची में नहीं लाके हम हटा दे, बड़ी दूर दी गल। आप तो चर्च भी नहीं लाया, शर्म आती सब चुका लगे बाइबल। कोई पूछे कहाँ के जान लगा, मैं चर्च वही आके शर्म आती है। बाइबल का तो खड़ी, बाइबल क्या कहती, बाइबल में लिखा है, बाइबल बता के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। मैंने जो भी खुदा ने मुझे गाड़ी छोटी दी या बड़ी दी, उसके अंदर मैंने एक बाइबल पेश कर दी। हालेलुया। मैं उन्हें मकैनिक को लेके जावा, मैं उन्हें किते मनादी दे लेके जावा, मैं छुट्टे भी लेके जावा, बाइबल उसमें है। कभी भी कोई पूछ सकता है, हवाला बताइएगा, उठे काट के हाँ जी ये मैंने ये अपनी जिंदगी के अंदर असूल अपनाए। जब तक आप नहीं अपनाएंगे आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप फेलर हैं, दुनिया के ग्रेट फेलर होंगे आप। अगर आप उसको फॉलो करेंगे आप दुनिया के सीम होंगे। आमीन। दुनिया आपको देखेगी। बाइबल हमें यही बंदा जो था जिसके ऊपर रूह की असह तलवार चली ते जी उथे किते आंदा। अच्छा जेड़ा कबीला दे नाल जा रहा सी, जेड़े इंजे उन्होंने आंदा मैनू किते सर्जन को, अच्छे डॉक्टर को ले जाओ। किहदे को ले जाओ? अच्छे भी मेरियां अखां ते काला मोती आ गया, मैनू नजर है। लेकिन सबसे पहले इसने कहा मुझे उस काहिन के पास, हननिया के पास ले जाओ जो पहले प्रार्थना करे, दुआ करे। जैसे उसने उसको प्रार्थना की, दुआ की, उसकी आंखों से छिलके से उसकी आंखें भी नहीं हो गई। उसको ऐसी रूह की तलवार जब चलेगी, आपकी आंखें नहीं, आपकी सोच नहीं, आपके ख्याल नहीं, आपके जबान नहीं, आपका दिल नहीं, आप तो फिर टाइडे इंजे ड्रामे भी नहीं, फिर ड्रामे केड़े होंदे खुदा ले। आमीन। अगर तुम वेखोगे तो वर्शिप सुनो, हैं स्टार प्लस फलाना प्लस प्लस नहीं सुनोगे। बाइबल क्या कहती, बाइबल में लिखा है, बाइबल हमें ये सिखाती है। फिर इससे कहा नो मुझे हननिया के पास लेकर चलो। हननिया कहता ओ ठीक है, सुन सी तुझे कहता इससे बपतिस्मा लिया। फिर कैसे तने झूठ नहीं सी मारा भी मैं आज निकाल लांगा, अजय मेरी तैयारी नहीं, कल मेरी तैयारी नहीं, परसों मेरी तैयारी नहीं, भी जलेबियां खानी तेरी तैयारी है क्या? खुदा का कलाम कहता तो लिखा है, बाइबल हमें बताती है, कहता है यही मेरे लिए बेहतर है मैं खुदा की नजदीकी हासिल करूं। लिखा आज ही वक्त है तौबा का, आज ही वक्त है। कल किसने देखा? को देखा किसी ने कल? हमें तो नहीं, मुझे तो नहीं पता कल क्या होगा या क्या होगा। पता नहीं सांस भी लेंगे, नवाला भी खाएंगे या नहीं, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है कल खुद तुम्हारे लिए फिक्र करेगा अगर तुम उसमें पाविस्त हो। मैं जमीन पर तलवार चलवाने, वो तलवार रूह की है। हालेलुया। खुदा हम सबों को बड़ी बरकत दे। दोनों हाथों को उठा के ताली बजाइए।